Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. And today is 23rd of September 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले we are going to discuss some questions from the previous day session. In the last day session, we discussed some points regarding the Financial Action Task Force because it gave some comments regarding the performance of Indian authorities, government authorities, which have taken action against such organizations or individuals those were involved in money laundering or terrorism financing. So now we are going to revise the Financial Action Task Force. So what is the main objective of the Financial Action Task Force? इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन दोनों को ही डील करना इसका मेन पर्पज है. That is Financial Action Task Force. Initially, this organization was instituted for the purpose of just money laundering, but later on the objective of terrorism financing was included. Next is, when was the Financial Action Task Force established? इसको कब establish किया गया था, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा because this point has been discussed multiple times and also I discussed this point in yesterday's session. So you have to give answer for this question in the comment box. Next question is, which country is not currently on FATF's blacklist? इनमें से कौन सा कंट्री है जो FATF की blacklist में नहीं है? देखो, नॉर्थ कोरिया यस, म्यांमार यस, ईरान यस, बट अभी जो पाकिस्तान है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं है. इट्स ऑन दी ग्रे लिस्ट, जिसमें आपको पता होगा कि ग्रे लिस्ट इज टू इंडिकेट द वार्निंग दैट इज गिवन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. Next is, what is the consequence of being on FATF's blacklist? If some country is included in the blacklist, then what can be the consequences for the economy or the country? So, loss of voting rights in the UN, no financial aid from IMF, World Bank, ADB, EU. It means Asian Development Bank, and that this is European Union. So this is the correct answer. Because Financial Action Task Force की लिस्ट में, that is black list में, अगर if country is included, then such country don't get financial aid from IMF, World Bank, ADB and European Union, and there can be some other certain actions against such country. Next question is, what type of countries are placed on the FATF's grey list? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको दिया था, so इसका आंसर आपको देना है. You have to give the answer of this question in the comment box. Next question, which summit led to the establishment of the FATF? तो FATF की किस मीन्स को जब हम establish किया था इसमें, तो कौन सी एक का जो establishment हुआ था, कौन सी समिट के थ्रू हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, कल के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था. सो यू हैव टू गिव मी द आंसर दैट विच वॉज द प्लेस और द समिट जहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. ये एक बहुत बड़ा शहर है और जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है मल्टीपल टाइम्स, और ये एक्चुअल में है आपका G7 समिट की जब हम पेरिस में बात करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, और ये बड़ा सा शहर है, पेरिस की बात यहाँ पर हो रही है कि पेरिस में इसकी मीटिंग हुई थी. व्हाट वाज द एडेड टू द ये मैंडेट ऑफ 2001? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2001 में जब ये इसका इस्टेब्लिशमेंट मीन्स इस इस्टेब्लिशमेंट के बाद इस मीन्स इसमें ऐड नई चीज़ की गई थी, वो थी टेररिज्म फाइनेंसिंग. इट मीन्स स्टार्टिंग में इनिशियली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव केवल जो है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के था, बट लेटर ऑन इसको ऐड कर दिया गया इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को. विच कंट्री बिकेम अ मेंबर ऑफ FATF 2010 में? तो ये तो किसी और कंट्री की बात हो नहीं रही है, इसका आंसर तो आप इजीली दे ही सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको देना भी चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग इन ग्रे लिस्ट? इसका आंसर मैंने आपको दिया था कि ग्रे लिस्ट इज़ द वार्निंग लिस्ट.
कि if any country is not cooperating with the FATF against the terrorism financing and money laundering, then such country will be listed in the grey list, and this will work as a warning to that country that either you cooperate, otherwise you will be in the blacklist. और blacklist में हो गए तो फिर उसके लिए बाद में क्या हो जाएगा, इन पर बहुत सारे sanctions लग जाते हैं. So this was the regarding FATF. Now we are going to discuss today's current affair. So इसका context क्या है कि अभी क्वाड की एक समिट हो रही है, ठीक है, क्वाड इसकी 4th समिट है, और वो भी कैसी समिट है, लीडर्स की समिट है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इट्स नॉट अ मिनिस्ट्रियल लेवल समिट. और कहाँ पर हुई है, ये यूएसए में हुआ है, यूएसए में भी डेलावेयर है, वहाँ पर जो है इसके एक उसमें भी पर्टिकुलर प्लेस है इनका वेलिंगटन, वहाँ पर इनका ये मीटिंग हो रहा है, ठीक है. सो 4th मीटिंग है, और किसकी मीटिंग है, ये क्वाड की, और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है. इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो अपना इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द 4 मेंबर्स जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं. और इस रीजन में ये चाहते हैं सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी चाहते हैं कि इसका ओशियन वाला जो रीजन है इसमें ट्रेड, बिजनेस, वो सब कुछ कैसा हो, सिक्योर है. और यहाँ पर ये देखो इनकी मीटिंग का एक फ़ोटो है, इनको आप सब जानते होंगे, और जानते तो आप इनको भी होंगे. नाउ आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू दैट टेल मी द नेम ऑफ दिस एंड दिस पर्सन. इन दोनों पर्सन के आपको नेम बताने हैं कि ये कौन है, किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए. नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं कि क्वाड के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स के रिगार्डिंग में. देखो चारों जो कंट्री हैं 4 डेमोक्रेसीज हैं, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका यूएसए, चारों के चारों डेमोक्रेसीज हैं, और इंडिया तो आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. इस क्वाड को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी हम इसको जानते हैं. इसका एम क्या है, ग्रुपिंग इज टू एंश्योर फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर. इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ भी हो वो फ्री हो, ओपन हो, मीन्स कोई 1-2 कंट्री मिलकर के उसको कंट्रोल ना करें, उसको हाईजैक ना कर लें, और रूल ऑफ लॉ इन द इंडो पैसिफिक. सो जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें किसी की मनमानी ना चले, मीन्स देयर शुड बी अ सम रूल ऑफ लॉ. इट मीन्स इनडायरेक्टली दे आर काउंटरिंग चाइना, कि चाइना क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ ना होकर के रूल ऑफ चाइना क्रिएट होता जा रहा है. सो एक्चुअली में ये जो क्वाड है ये चाइना को ही काउंटर कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है. ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या हैं, देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि भाई जितना भी ये जो ओशियन वाला रीजन है वो कैसा हो, सिक्योर रहे, और स्पेशली किससे, चाइना से, जो पायरेट्स होते हैं उनसे, और ऐसी किसी भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह से, सबसे. एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी ये कंट्रोल कर सकें, जैसे कि चाइना इस रीजन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, अदर कंट्रीज़ की जो मींस बायोडाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है, ओशियन की बायोडाइवर्सिटी है उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है. तो वो सारे के सारे. फिर क्या है, क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन. ये जो रीजन है उसमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो सके, जिससे कि लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिले और डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट है बूस्टिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. सो नोबडी कैन थिंक दैट विदाउट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दिस वर्ल्ड कैन डेवलप and this world can counter the climate change, because innovation से आपके पास में आएंगे नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आपको क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और आपका सॉइल पोल्यूशन, इन सब से हम फाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इनोवेशन. सो नोबडी कैन थिंक or nobody can imagine that without the appropriate technology you can exploit the natural resources, because without natural resources or without the available technology you can, for example, you cannot drill crude oil, जो आप डीजल, पेट्रोल, ये जो कुछ भी यूज कर सकते हैं बिना टेक्नोलॉजी के आप इसको अर्थ से तो नहीं एक्सप्लोइट कर सकते थे. सो इनका एक फोकस और क्या है, वो है
innovation in the technologies. If we talk about its historical background, so Indian Ocean में 2004 में बहुत ही भयंकर लेवल की सुनामी आई थी, और बिकॉज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, इन्होंने एक ऐसा मीन्स एक अलायंस क्रिएट किया कि इफ़ देयर इज़ एनी नेचुरल अलायंस लाइक सुनामी, देन ऑल कंट्रीज़ कैन कोऑपरेट टू हेल्प दी अदर कंट्रीज़ इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और एनी हाई लेवल जो है साइक्लोन्स. तो डिजास्टर रिलीफ इनका स्टार्टिंग में एफर्ट था, और बाद में फिर 2007 में इसको क्या कर दिया गया, फॉर्मली इसको बना दिया गया. किसके आइडिया पर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, उनका नाम था शिंजो एबे. और शिंजो एबे की ही देन है कि इंडिया और जापान के बीच में बहुत सारे जो MOUs हैं, एग्रीमेंट हैं, लाइक बुलेट ट्रेन है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने जापान से मिल करके यहाँ पे डेवलप की हैं. सो वो शिंजो एबे सर के टाइम की ही हमारे साथ में उनके एग्रीमेंट थे. तो 2004 में इसका आइडिया आया, 2007 में इसका फॉर्मल जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 2017 में आसियान की जब समिट हुई थी, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी जब समिट हुई तब जा करके इन्होंने क्या किया, ऑल 4 फॉर्मर मेंबर्स रीजॉइंड नेगोशिएशंस टू रिवाइव द क्वाड्रिलेटरल अलायंस. मीन जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था उसको उन्होंने फिर से रीइनिशिएट किया, इसको रिवाइटल किया. कब? 2007 में. सो ये जो क्वाड था इसको अपग्रेड कर दिया गया बाद में 2019 तक आते आते मिनिस्ट्रियल लेवल की समिट में, कि भाई सबसे पहले हायर लीडर से पहले कौन मिलेंगे, मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होंगी. फिर 2021 में आपको पता होगा ये लीडर सब मिलना चाहते थे, लेकिन क्या आ गया, उस समय आ गया कोविड. और कोविड-19 में आप सबको पता है कि फिजिकली जो मीटिंग्स थी वो पॉसिबल नहीं थी. सो सबसे पहले इनकी जो मीटिंग हुई जिसमें टॉप लीडर्स इनके थे, मींस यूएस के प्रेसिडेंट, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, इनकी फर्स्ट समिट जिसको हम कहते हैं लीडर्स की फर्स्ट समिट जो हुई वो वर्चुअल हुई 2021 में, जिसको होस्ट किया था यूएसए ने. तो वहाँ से इनकी एक्चुअल फंक्शनिंग स्टार्ट हुई, मींस 2021 में मार्च में इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई, और सितंबर 2021 में ही फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग भी उन्होंने ऑर्गेनाइज कर ली बाय यूएसए. सो 2021 में ही इनकी वर्चुअल समिट हुई और इन पर्सन मीटिंग भी इनकी 2021 में हो गई. सो हम ये कह सकते हैं कि इनकी फर्स्ट जो मीटिंग हुई जिसमें सारे लीडर्स जो इन पर्सन अवेलेबल थे ये 2021 में हुई. यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आता है कि क्या ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का? नो, बिकॉज ये इसका कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इसको हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकें, बिकॉज इट लैक्स सेक्रेटरीट. कोई सेक्रेटरीट नहीं है इसका, कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है जैसे कि यूएन में है, आपका जो है EU में है, यूरोपियन यूनियन में है, या और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है. तो भाई फिर ये कैसे काम करता है? सो द बेसिक थिंग अबाउट इट्स फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर इज दैट कि इनके बीच में जो पहले के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं, जो भी इनके इन चारों कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशनशिप हैं, MOUs हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको ही क्या करना चाहते हैं, ये उन पर ही फोकस करना चाहते हैं और उन्हीं को हाईलाइट करके अपनी वैल्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं, और शेयर जो वैल्यू कर रहे हैं उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, रूल बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, रूल बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी, रूल बेस्ड ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, उन सब पर ये काम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी पर काम करना चाहते हैं. सो एक्चुअली जो क्वाड है इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो 2004 की सुनामी की वजह से हुआ. लेटर ऑन इसमें अब सारे कंट्री ने कोऑपरेट किया, 2017 में फॉर्मल हुआ, फिर 2017 में आता कर इसको, और इसका एक मीन्स रिवाइटल हुआ, और 2021 में इसकी मीटिंग होकर के स्टार्ट हो गया. और अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो अब जो 2024 है इसमें इसकी 4th मीटिंग हुई है ये, और वो मीटिंग कैसी है, इनकी समिट है ये, मीन्स लीडर्स समिट है, मीन्स मिनिस्टर लेवल की नहीं है, इन कंट्रीज़ के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी मीटिंग है ये. ठीक है. सो ये इसमें आज के सेशन में था, और कल के सेशन में फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में. सो आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.